Good afternoon, everyone. How you all are doing? I'm BK Singh. I personally welcome you for this great webinar on latest changes in CBSE sample papers for Term 2 examination 2022 issued by CBSE. So today we will be covering a standard and basic entire concepts. So I have prepared a very beautiful PPT for you all. And that is after the session, I'll provide this PPT to you all. So after the session, whatever I'll discuss today, after the session, I'll provide entire PDF format, even Word format to you all to know all the things in more better way. So I'm going to start this session with this important quote. If you want to teach people a new way of thinking, don't bother trying to teach them. Instead, give them a tool, the use of which will lead to new ways of thinking. So in today's seminar, today's webinar, I'm going to discuss some very important tools with you all. Request karunga, okay, and I'll use both language, mixed language in today's session. I'll request you all, if it is possible, to kindly switch on your videos. That will be better way of communication to each other. So, agar possible hai, to aap log on kar le, to I'll be very glad. Generally, we make complaint to our students while taking our school classes that they do not switch on their videos, phone and all. You all are teachers. I'm also a teacher. तो मेरे ख्याल से हम सबको तो अपने वीडियो ऑन करके एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना चाहिए. That will be ये थोड़ा बेटर वे हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, और एक दूसरे की हम क्वेरी भी लेंगे. एंड आई हैव योर चैट बॉक्स ऑल्सो. सो कोई भी अगर आपके मन में कोई ऐसा कोई क्वेरीज है, तो यू मे राइट योर क्वेरीज and I'll take it, of course. So a matter of discussion will be, these are the points today I'm going to discuss. That is a small introduction about myself, that is BK Singh. Then we will discuss about reduced syllabus. Then short discussion on units and chapters. Then short discussion on weightage, chapter-wise weightage. Short discussion on question paper outlook. What will be the question paper's outlook in 2022 CBSE board paper as far as mathematics concerned. Then short discussion on chapter-wise marking scheme. What will be the chapter-wise marking scheme in 2022 CBSE board paper. Then detailed discussion on deleted parts. Still, we all have a lot of confusion that what have been deleted in quadratic equation, what have been deleted in arithmetic progression and all. I'll try my level best to clear entire concept regarding those all 7 chapters जो हमारे CBSE board के पेपर में आ रहे हैं. Then there will be book strategy for 2022 board papers. अब हमारे पास 1.5 months का टाइम बच गया है. इस 1.5 months में हम क्या पढ़ें, बच्चों को क्या पढ़ाएं इतने कम पीरियड में कि बच्चे पढ़ करके दे विल स्कोर इवन 100% मार्क्स, और सारे के सारे बच्चे पास तो हो ही जाएं बिल्कुल. Then second last part will be sample paper strategy, और सबसे लास्ट में डिस्कशन होगा कि what BK Singh is going to provide you for 2022 CBSE board papers. So these are I think there are 10 points हैं जो हमें डिस्कस करना है आज के सेमिनार में. Yes, I'll try to speak maximum part in English. I'll try to speak maximum 75% of English and 25% of Hindi. You all are comfortable? You all are comfortable with that? Yes, sir. I think that will work because many teachers are from down south. No issue. Right, sir. No issue. Okay. So these are the 10 most important parts. So let me introduce myself. I'm BK Singh. I have written complete course in mathematics by Goyal brother Prakashan. That is for class 9th and 10th. Then I have also written a Consult Me Mathematics by JPH publication. Then previous year question papers from Satish brother and sons. And I did a sample paper work from Sahitya Bhavan publication, that is UP State Board curriculum. And then Pariksha sample paper from Rachna Sagar publication. My teaching experiences, I'm a guest faculty of Delhi Public School, Chas Bokaro. I'm also running my coaching center in Delhi that is under the name, that is Abhyas Study Center. And a digital teaching experience is, I was associated with Bright Tuty, assistant concern of Goyal brother Prakashan in past. And I'm also a founder of Maths Padho. There are 30,000 students are there on this platform, and catering UP and Bihar board students presently.
And presently, I'm working with Vidyakul platform. It is a leading leading the foundation team of that organization, and also teaching class 10th mathematics over there. Also working with EduNext, their Learno Test World Olympiad, and I'm leading the entire team of mathematics over there. And I'm also a founder of Edu School Quiz. And this platform is providing mathematics quizzes to more than 10K students globally. So these are my brief profile. Now coming to the main point, short discussion on units and chapters. So there are 7 units, there are 7 chapters which will come in term 2 paper. तो start करते हैं, that is unit name के साथ start करते हैं, that is algebra. As far as algebra concerned, we all are aware of these all topic, but एक बार मैं इसको go through कर देता हूँ ताकि सबको clear हो जाए. Nothing more than that, because we all are teachers, so I think we all are aware of these all topics and all. But मेरा duty बनता है कि जब मैंने start किया तो once I should tell this entire part again. So chapters quadratic equation, that is chapter 4 from NCERT book, arithmetic progression, chapter number 5, unit name is algebra. So earlier it was polynomials and linear equation in 2 variables, that was under the algebra unit, but now in term 2 we have quadratic equations and arithmetic progression. That is chapter 4 and chapter 5. Then we have geometry, that is geometry, we have 2 chapters, one is circles and another chapter is constructions. Then trigonometry unit, only 1 chapter we have, and then is some applications of trigonometry, that is chapter number 9, as far as our NCERT book concerned. Then we have unit is mensuration and surface area volumes we have, that is chapter number 13. And last unit is statistics and probability. Probability was in term 1 curriculum. Now we have statistics, and that is chapter number 14. तो ये तो brief idea हो गया about units and chapters. अब as far as a short discussion on weightage, तो weightage अगर concern करता है तो algebra में weightage of this algebra part is 10 marks. 10 marks for we have 2 chapter in algebra. One is arithmetic progression and second one is quadratic equation. तो इन दोनों चैप्टर का जो weightage होगा that will be 10 marks. Then geometry जो है we have circles and construction, and weightage of circles and construction दोनों को include कर लें तो total weightage of these 2 chapter will be 9 marks. So algebra is covering the major weightage, that is 10 marks. Then we have geometry, circles and construction. Construction is a very easy chapter, we all know that. And as far as circles, construction is a very easy chapter, and circles be NCERT book is more than sufficient to score very good marks in CBSE board paper. As far as CBSE sample paper issued by CBSE board, तो उसका अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो सर्कल्स में लगता है कि सर्कल्स में टर्म 2 के पेपर में भी हमारे एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आने, तो देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है. देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, वेटेज ऑफ दिस पार्ट इज 7 मार्क्स. तो अलजेब्रा इज 10 मार्क्स, ज्योमेट्री 9, देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री 7, and mensuration, that is surface areas and volume, only 1 chapter in this unit, and that is 6 marks. Then we have statistics and probability. So probability तो है नहीं, we have statistics only, and weightage of this chapter is 8 marks. That means कि maximum marks will be 40. ये हमें clear है. And internal assessment में there are 10 marks, यानी कि 10 marks वहां पे है, तो 40 plus 10, that means कि maximum marks will be 50 now. यानी कि टर्म 2 का जो बोर्ड का पेपर होना है वो 50 मार्क्स का होना है. 40 मार्क्स का हमारा जो थ्योरी पेपर है, एंड 10 मार्क्स दैट इज फॉर इंटरनल असेसमेंट. तो इन टुडे सेशन आई एक्सक्लूसिवली डिस्कस द एंटायर दिस पार्ट, नॉट अबाउट द इंटरनल असेसमेंट एंड ऑल, बट इंटरनल असेसमेंट में देयर विल बी पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का है, मल्टीपल असेसमेंट दैट इज 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो दैट इज 2 मार्क्स, एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क दैट इज 3 मार्क्स. तो ओवरऑल दैट विल बी 10 मार्क्स. तो 40 plus 10 ये टोटल 10 का कॉम्बिनेशन है. जो थ्योरी का जो हमारा पेपर होगा दैट विल बी कवरिंग 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का है, ठीक है. वो हमारा जो टर्म 2 का जो एनुअल पेपर होना है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होना है. अब आते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वाइज वेटेज ऑफ टर्म 2 पेपर, दैट इज अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट. Then we have now, I'm coming to short discussion on question paper outlook. What will be the outlook of the question paper? So we must be aware of these all things and all, but एक बार फिर भी मेरा ड्यूटी बनता है कि अगर आप सबको बता दूं, तो there will be 14 questions होंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में there will be 6 questions, 6 questions होंगे सेक्शन ए में. As far as section B concerned, there will be 4 questions.
और सेक्शन सी में अगेन विल हैव 4 क्वेश्चंस। तो 6 + 4 + 4 यानी कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 + 4 + 4, ये टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। टाइम विल बी 90 मिनट्स, यानी कि जो टाइम होगा वो 1.5 आवर का होगा, दैट विल बी 90 मिनट्स का टाइम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 14, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस विल बी 3। सेक्शन ए 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, दैट मींस कि अब हमारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे और 1 मार्कर क्वेश्चन भी नहीं। दैट मींस कि मेक इट क्लियर, अब हमारा पेपर जो है इंटायरली दैट विल बी अ सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न, नो 1 मार्कर क्वेश्चन, I mean no very short answer question and no multiple choice question will be there in the CBSE board paper. So क्योंकि हमारे टर्म 1 का पेपर इंटायर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड था, तो टर्म 2 ने सीबीएसई यही कहा कि भाई वो सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न। और अभी अगर हम कोविड के सिचुएशन को देखें तो मुझे लगता है कि 100% अब हमारा सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न टर्म 2 का पेपर पे होना है। 2 hours, I think maybe 2 hours, सुधागर पलानी जी, मे बी हो सकता है कि मे बी दैट इज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड हो सकता है, इसलिए मैंने उसको 2 आवर का होगा तो दैट में 120 मिनट्स, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मैंने पुराना जो सर्कुलर देखा था दैट वाज टॉकिंग अबाउट द 1.5 आवर, मे बी हो सकता है 2 आवर्स का। आई विल कंफर्म इट विद इन द सेशन आल्सो, ठीक, आफ्टर चेकिंग द सीबीएसई सैंपल पेपर। जो भी सीबीएसई सैंपल पेपर के जो टाइम जो लिखा हुआ है दैट विल बी द कंफर्म टाइम, हो सकता है कि दैट इज 2 आवर्स, तो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन दैट पार्ट। तो 14 क्वेश्चन, सेक्शन विल बी 3, 2 मार्कर क्वेश्चंस हमारे सेक्शन ए में होंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन बी, एंड इन सेक्शन सी देयर विल बी 4 मार्कर क्वेश्चंस, राइट? देन वी हैव internal choices questions are also there in section A, section B and section C also. तो आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन में जो टोटल आपके जो 4 क्वेश्चंस होंगे देयर विल बी इंटरनल चॉइस होंगे, यानी कि आउट ऑफ 14 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दे रखे हैं। आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। सेक्शन ए में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जो इंटरनल चॉइस के साथ होंगे, सेक्शन बी 1 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी अगेन 1 क्वेश्चन। दैट मींस कि देयर विल बी 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, 1 क्वेश्चन इन सेक्शन बी and 1 question again in section C. So 2 marker questions say 3, these are the 4 marker questions. I have clearly mentioned here that is section A there will be 2 questions as far as the internal choice question concerned, in section B 1 question and in section C there is again 1 question. Most important about case study based questions. Out of 14 questions there will be 2 case study based question in your CBSE board paper. यानी कि टोटल 14 क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में नो चॉइसेस विल बी देयर, यानी कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होंगे। जो इंटरनल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में, राइट, एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, टाइम विल बी 2 आवर्स। ओके, तो देयर विल बी 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जो पुराना जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, इट वाज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में था कि आउट ऑफ 5 वी हैव टू डू 4 क्वेश्चंस को करेक्ट करना था, ठीक है, 1 1 1 का सीक्वेंस था, दैट मींस कि 4 मार्क्स का हुआ करता। स्टिल वी हैव 4 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन अब 4 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सीक्वेंस। 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, सेकंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के 2 पार्ट होंगे, that means कि 2 part for 1 case study based question and 2 part for another case study based question। यानी कि अब वो MCQ के A B C D के फॉर्मेट में नहीं होगा, because the entire pattern is subjective, तो हम MCQ की बात करेंगे नहीं। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होंगे, मेक इट क्लियर। देयर विल बी 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यूजुअली इनके जो नंबर्स होंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन 13 पे हमारे पास विल हैव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन जो 30, दिस इज क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 जो होगा दैट इज अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर दैट इज 2। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, थैंक यू सो मच। टाइम इज एग्जैक्टली 2 आवर्स, ठीक है, बाय मिस्टेक आई डिड 1.5 आवर, एग्जैक्ट टाइम इज 2 आवर्स, राइट, थैंक यू सो मच।
तो केस स्टडी क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अब केस स्टडी बेस्ड में नो ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे कि आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 एंड 1 into 4 का मार्क्स का पैटर्न था. नहीं है, 4 मार्क्स की अभी भी है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, यानी 2 मार्कर के 2 क्वेश्चंस होंगे. इन केस स्टडी क्वेश्चन 13 में होगा, नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 14 होगा. तो आई थिंक यहां तक का बिल्कुल क्लियर है. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 6 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस. इन सेक्शन ए 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, इन सेक्शन बी 1 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, एंड इन सेक्शन सी अगेन 1 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन. केस स्टडी बेस्ड में नो कोई भी उसमें इंटरनल चॉइस नहीं होंगे. 2 क्वेश्चंस आपको दोनों करने पड़ेंगे, दैट इज मैंडेटरी. और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, 2 मार्कर आपके 2 पार्ट्स होंगे. यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? राइट. So these all are the question paper outlook. These are the outlook of our CBSE board question paper. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब आते हैं next most important part is a chapter wise marking scheme. What will be the marking scheme of our CBSE board question paper? Sorry. So as far as basic paper concerned, chapters are all same. As far as basic हो या standard हो, we have already 7 chapters, same units. थोड़े से क्वेश्चन पेपर के इंटेंसिटी में डिफरेंस होंगे, नथिंग मोर देन दैट. अगर आप मुझसे पूछें, काइंडली डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन प्लीज. ठीक, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन प्लीज. थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह जी, थैंक यू सो मच. बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, एज फार एज माई टीचिंग एक्सपीरियंस कंसर्न, क्वेश्चन पेपर के इंटेंसिटी में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग. कोई बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं पेपर जो है बेसिक लेवल का पेपर दे रहा हूं. एक बच्चा कहता है कि सर आई एम अपेयरिंग फॉर स्टैंडर्ड लेवल पेपर. देन फ्रैंकली स्पीकिंग, पेपर्स में अगर आप डिफरेंस मुझसे पूछते हैं तो 19-20 जो हम हिंदी में बोलते हैं 19 और 20 का ही डिफरेंस होता है. नेवर एक्सपेक्ट कि 20 और 10 का डिफरेंस हो. जो डिफरेंस है दैट इज 19 एंड 20 का डिफरेंस. तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता. आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे दैट इज फ्रॉम बेसिक सेगमेंट और आप दंग रह जाएंगे वो क्वेश्चन बेसिक सेगमेंट में डला क्यों. तो मुझे तो लगता है कि बहुत बार सीबीएसई बोर्ड इटसेल्फ बहुत कंफ्यूज्ड होती है एज फार एज जो क्वेश्चंस के कलेक्शंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन देखते हैं, वहां पे ऑलरेडी दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं. निखिल जी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th करिकुलम प्रेजेंट, राइट, ऑफ सीबीएसई बोर्ड. बट 9th और 10th का पैटर्न सेम होता है, लेकिन 9th में स्कूल हैव देयर ओन मोनोपोली. तो उस केस में स्कूल अपने तरीके से भी अपने क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते हैं. बट क्लास 10th में पैटर्न इज फिक्स्ड. आप चाहे स्कूल का पेपर्स बना रहे हो या आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनेगा तो पैटर्न विल बी फिक्स्ड. तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th और सीबीएसई बोर्ड पेपर पैटर्न. तो बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होगा. इन लेटर ऑन स्टेज आई डिस्कस अबाउट इट. So as far as basic level paper concerned, and this content I have taken from CBSE or sample paper question paper. That is the truth we have. वही हमारे पास है. Presently we have only one ground to scrutinize, to evaluate these all things, and that is CBSE board sample paper issued by CBSE board itself. So I have taken these all content from CBSE board sample paper.
So quadratic equation, that is the unit from the algebra unit. We have two chapters. One is quadratic equation and another one is arithmetic progression. In quadratic equation, there will be two questions. Two marker, one question, and one question is 3 mark. 3 marker question is word problem question given in CBSE board sample paper. So make it clear. Still, people have a lot of confusion. कि what problems from quadratic equations have been entirely deleted. This is wrong, I'm telling. This is wrong, I'm telling. So no confusion at all. No confusion at all. CBSE board के sample paper में already questions have been given from word problem segment. So ऐसा नहीं है कि word problems के questions entirely हट गए हैं. क्या deleted है? I'll tell you. अभी बताऊंगा कि क्या deleted. तो quadratic equation में word problems deleted नहीं हुए हैं. Entire word problems have not been deleted. So make it clear. तो weightage of quadratic equation is 2 marks. बिल्कुल 100% चांस है कि in quadratic equation segment you will get one question from internal choice segment. यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर में आपको मिलेगा इंटरनल चॉइस का चांस आप सबको मिलेगा कि आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन. यानी कि 2 मार्कर का एक क्वेश्चन जिसके साथ इंटरनल चॉइस होगा और वन क्वेश्चन जो होगा दैट इज ए वर्ड प्रॉब्लम का सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में दे रखा है. अब ये मैंडेटरी नहीं है कि व्हाट एवर हैज बीन गिवन इन योर सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर वही सीबीएसई बोर्ड का जीरोक्स कॉपी होगा. नॉट लाइक दैट. हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने वर्ड प्रॉब्लम यहां पर मेंशन करा हुआ है. दैट मींस ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वर्ड प्रॉब्लम आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने जा रहा है. तो हमें बच्चों को कभी ये नहीं बताना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैव बीन डिलीटेड. मैं करीब अराउंड 2000 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं अभी भी. क्लास सारे के सारे बच्चे दे ऑल आर फ्रॉम क्लास 10. बहुत सारे बच्चों के स्कूल के टीचर्स अभी यही कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स हट गया, वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीटेड. एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीटेड नहीं है. क्वाड्रेटिक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम आल्सो, वही पार्ट डिलीटेड. अब यहां पे सीबीएसई बोर्ड लिखती है सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम. तो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम जो सिचुएशन है ना, दैट इज अ वेरी ह्यूज वर्ड. वो बहुत बड़ा वर्ड है. आप एक छोटे बच्चों को, क्लास 10th के बच्चों को, हाउ कैन यू टीच देम कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विल बी सिचुएशनल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विल वोंट बी सिचुएशनल प्रॉब्लम. दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस. तो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम का बात वहीं पे हम करेंगे जहां पर ऐसे क्वेश्चंस आए जो कहते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस, had been, would have been like this. होता है ना ट्रेन का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो फिर वो 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाएगी. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे एनसीईआरटी बुक में भी. वी ऑल नो दैट. तो सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सिचुएशनल प्रॉब्लम. अगर मैं ऐसा कहूं कि सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर के सम है that is 290, so this is not a situational based problem. So यहां पर बिल्कुल क्लियर करना है. तो whenever you will search for situational based problem in your NCERT, you will get only 3 to 4 questions that is based on situational problem. So I personally recommend you all कि don't try to reject all those 3 to 4 questions. आप उनको क्यों रिजेक्ट करते हैं? अपने बच्चों को करा दीजिए. 3-4 क्वेश्चन अगर बच्चे छोड़ लें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बच्चों के साथ कोई हम कमाल कर पाए. तो बच्चों को करा देंगे हम. व्हाट इज रॉन्ग इन इट? हार्डली इट विल टेक 1 hour. Hardly it will take 1 hour to cover all those 4 to 5 questions. So one question 2 marker and one question 3 marker. That means the weightage of this chapter will be 5. As far as arithmetic progression, one question 2 marker, one question 3 marker, that will be 5. So the weightage of algebra is 10 marks approximately. Some applications of trigonometry. This is a very crucial chapter, very important chapter.
3 marker 1 questions और इस 1 के साथ और भी लगा हुआ. It is given in your CBSE board sample paper. I'm talking about that. ये मेरा नहीं पैटर्न, ये CBSE board sample paper का पैटर्न. Issued by CBSE board itself. So 1 3 marker question including or option and 4 marker question that is case study based question. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में भी होगा कि बीके सर हम क्या पढ़ें, बच्चों को क्या कराएं जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कवर अप हो जाए, कौन से चैप्टर को करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. तो 4+3 दैट मींस की वेटेज ऑफ दिस चैप्टर विल बी सेट. ठीक है. अब ये वेटेज थोड़ा टैली कर सकता है. जैसे यहां पर सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में बेसिक में इट इज गिवन कि देयर आर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, one from some applications of trigonometry, that is height and distances, and another from surface areas and volume. अब मुझे आप बताएं, एज एन एडुकेटर आप मुझे बताएं, सरफेस एरिया वॉल्यूम से बेसिक लेवल में सीबीएसई बोर्ड ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया. सरफेस एरिया वॉल्यूम मींस कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्वड ओवर देयर. तो आप बच्चों के लिए कंफर्ट जोन में क्या कर रहे हैं? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है केस स्टडी बेस्ड यहां से नहीं हो, यहां से नहीं हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ जाए. हो सकता है केस स्टडी बेस्ड यहां से नहीं हो, ये सर्कल चैप्टर से आ जाए. तो अगर इस सर्कल चैप्टर से आ गया तो ऑटोमेटिकली वेटेज जो है ना, वो वेटेज इंटरलिंक्ड कर जाएंगे, यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे. जो वेटेज पहले जिसको जितना था वो शिफ्ट हो गया केस स्टडी में, वो वेटेज वहां पे चैप्टर में चला गया. तो not fixed कि जो आपके case study based question which will come in your CBSE board paper, that will be from some applications of trigonometry and surface area volume. बेसिक में ऐसा नहीं है, ये तो बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं. So we have circles का वेटेज है 2 क्वेश्चंस और के साथ है, that one 3 marker question, तो 5 मार्क्स. कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स बिल्कुल फिक्स्ड. और कंस्ट्रक्शन चैप्टर बहुत सेफ चैप्टर हम सबके. अगर हम बच्चों को 5 to 6 कंस्ट्रक्शन करा दें तो मुझे लगता है कि everyone will score 4 marks out of 4 marks in their construction chapter. So this is a very simple chapter. और कंस्ट्रक्शन से कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाए. ये नॉर्मल क्वेश्चन ही आना, क्योंकि वेटेज ही है तो 4 मार्क्स का आएगा. ठीक है, ये अच्छी बात है. इस बेसिक लेवल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है कंस्ट्रक्शन से, दैट इज गुड साइन कि उनके लिए थोड़ा सा काम आसान है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ खास पढ़ना ही नहीं. अब as far as statistics concerned, 2 1 marker question, 2 1 marker question and 4 1 mark. 4 plus 2 plus 2. That means the weightage is 8 marks. This is good weightage for basic level students. No, steps for construction is not required if it is not given in your question. अगर एक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि also write the steps of construction, तो no need to write the steps of construction in your answer sheet. आप क्वेश्चन आंसर शीट को we don't have to make it lengthy because time is only 90 minutes in it. Questions will be 14. आप मुझे एक प्रैक्टिकल सी बात बताएं. We all are educators, we all are teachers. अगर हम उन बच्चों के साथ हम भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बैठ जाएं, उन बच्चों के साथ अगर हम भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बैठ जाएं, तो क्या ऐसा होगा कि हम अपने पेपर को 30 मिनट्स में कर लेंगे? नॉट लाइक दैट. डिस्पाइट वी आर एन एडुकेटर. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता. तो 90 मिनट्स जो टाइम है ना, हमें भी पेपर को करने में 90 मिनट्स का ही टाइम लगेगा. तो बच्चों को हमें अगर इफ यू आर टीचिंग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, तो वी नेवर हैव टू टेल देम कि आपको पूरे के पूरे लैंग्वेज लिखने, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी दिस बी दिस. ऐसा नहीं लिखने के लिए हमें बताना. हम अगर ऐसा लिख देंगे कि ए बी और यहाँ पे हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 20 मीटर, तो ऐसे लैंग्वेज भी पेपर में चलता है. ऐसा नहीं कि हमें वी हैव टू राइट डाउन ए स्टोरी ओवर देयर इन द पेपर. हमें बच्चों के टाइम को सेव करना है, तो ये मेक इट क्लियर. और एज एन एडुकेटर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को इतना प्रैक्टिस कराएं कि बच्चे अपने टाइम को सेव करें, क्योंकि जब तक वो टाइम 10 to 15 मिनट्स दे वोंट सेव, तो उस केस में हो सकता है उनके, बिकॉज जब तक आप उसको 2 बार 3 बार पेपर के लास्ट में
रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक पूरे के पूरे मार्क्स उनके नहीं आ सकते। जस्टिफिकेशन इज इवन नॉट रिक्वायर्ड, जस्टिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन इज इवन नॉट रिक्वायर्ड। हम अपने स्कूल में बच्चों को जस्टिफिकेशन भी बताते हैं, टैंजेंट्स के केस में बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में अगर नहीं दिया हुआ है तो डोंट हैव टू राइट डाउन जस्टिफिकेशन एज वेल एज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सीबीएसई। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो दीज ऑल आर द वेटेज, सरफेस एरिया वॉल्यूम का वेटेज हो गया, ठीक है, 40 मार्क्स का वेटेज हो गया, चैप्टर वाइज वेटेज है। आफ्टर द सेशन आई विल प्रोवाइड दीज ऑल कंटेंट टू यू, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ भी ये आप शेयर कर सकते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल 2 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड में 2 क्वेश्चंस होंगे, नो ऑप्शंस, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस होंगे, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. Now I'm coming to a standard level question. So see the difference between these 2 papers, basic level and a standard level question paper as far as CBSE sample paper issued by CBSE board. Again, quadratic equation, we have 1 question, 2 marker 1 question and 2 marker 1 questions including or internal choice के साथ. This question is again a word problem question. ये तो word problem question की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गया कि quadratic में word problem हटा नहीं है, केवल situational problem have been deleted, common word problem questions नहीं delete हुआ है, और उसमें खास करके age group वाले questions, digits and numbers based questions और basic numbers based questions जो हैं वो delete नहीं हुए। जहां भी ऐसे क्वेश्चंस देखें, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड। देन सिचुएशनल बेस्ड कंडीशनल क्वेश्चंस, जहां पे मैं बोला कि भाई ट्रेन वाले स्पीड वाले जो क्वेश्चंस हैं ऑल हैव बीन डिलीटेड, लेकिन बेसिक जो नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस वो डिलीटेड नहीं है, एज ग्रुप के क्वेश्चंस डिलीटेड नहीं है। चलिए, नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन वी हैव 2 क्वेश्चंस, 2 मार्कर, वेटेज इज 4 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो एपी से दिया हुआ, दैट मींस कि पहले जो हम लोगों ने देखा बेसिक लेवल क्वेश्चन, तो 1 केस स्टडी बेस्ड, आवर टारगेटेड एरिया इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड टारगेटेड एरिया इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब अगर हम यहां पर आ जाए, ठीक है, इफ यू आर कमिंग टू स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन, आवर टारगेटेड एरिया इज अगेन, दिस इज कॉमन बिटवीन दिस 2, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। एक और भी आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है which are most important chapter for case study based question, that is arithmetic progression, some applications of trigonometry and surface areas wall. बाकी मैं तो कहूंगा statistics is again a very very important question, उसमें बहुत सारे case study based questions we can prepare in case of statistics. See, तो weightage of applications of trigonometry is 7 marks, 3 and 4 का combination, circle is 2 plus 4, 2 questions, 6 marks, construction 1, 3, कंस्ट्रक्शन में मार्क्स थोड़े चेंज हो गए, यहां अगर हम देखते हैं तो 4 मार्क्स का, दिस इज अ गुड साइन, बेसिक लेवल में 4 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड लेवल में 3 मार्क्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस कि 3 to 4 मार्क्स की कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन चैप्टर इज फिक्स्ड। देयर सरफेस एरियाज वॉल्यूम वी हैव 6 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 3 and 2, दैट इज 8 मार्क्स। ये दोनों में करीब करीब कॉमन है। तो स्टैंडर्ड लेवल का सेम वही कंसेप्ट यहां भी है, कोई ऑप्शंस नहीं है, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, जो केस स्टडी में 2 पार्ट आएंगे, 2 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक लेवल एंड स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर कंसर्न। गुड इवनिंग टू एवरीवन फ्रॉम लक्ष्मण सिंह, टीपीएस शास्त्री। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अगले पार्ट में। अगर कोई कॉमन क्वेरी है तो आप पूछते रहिए। अब आता हूं मैं
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो टुडे सेशन है, दैट इज डिलीटेड जो पार्ट है, उसका मैं बिल्कुल डिटेल्ड एक बार डिस्कशन कर दे रहा हूं आपको, और पूरा मैं कंप्लीट बुक लेकर कर रहा हूं जो एनसीईआरटी के बुक, ये आपको लगेगा दैट इज समथिंग यूनिक इज। तो दिस सिलेबस फॉर 2019 एंड 2020 का है सिलेबस, जो तब हमारा पार्ट डिलीटेड नहीं था, तो ये इंटायर पार्ट है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। और अगर हम यहां देखते हैं, थोड़ा लाइन को पढ़ते हैं, जरा एक बार देखते हैं, ठीक है। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इट वाज इन 2019 एंड 20, जब इंटायर सिलेबस का सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता था, 80 मार्क्स का होता था, मैक्सिमम मार्क्स वाज 80 मार्क्स। बट यहां पे क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम based on quadratic equation related to day activities, problem on equation reducible to quadratic equations are excluded। ये वही प्रॉब्लम हो गया कि अगर डिस्टेंस ये दे रखा है और स्पीड को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो पहले जितने देर में जाता था उससे 2 घंटे कम में जाता। अब क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके हम इसके x की वैल्यू को, ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x इन दैट केस। तो ये पार्ट डिलीटेड क्लियरली मेंशन इन योर करिकुलम, ठीक है। अब डिलीटेड पार्ट को अगर हम देख ले, तो मैं एनसीईआरटी बुक यहां पर एनसीईआरटी बुक स्क्रीन पे ला रहा हूं, ठीक है। दिस इज एनसीईआरटी, तो इंटायर पार्ट एनसीईआरटी में फास्ट गो थ्रू करते हैं, सब कुछ करना, वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। completing the square part say we have to find out the roots, that part has been deleted, so we have quadratic formula and factorization method is one, they are in the syllabus। तो वो तो entire segment has been deleted, जैसे कि जहां भी क्वेश्चंस, we're able to see the questions based on finding the roots by using completing the square method, entire part has been deleted। तो उसमें हमें बच्चों को कंफ्यूज करना ही नहीं है कभी, वो पार्ट तो पूरी तरीके से डिलीटेड है। तो अब बाकी रेस्ट आप देख लो, जहां भी है, मैं सारी चीजें मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं, कुछ भी इसमें डिलीटेड है, नथिंग हैज बीन डिलीटेड। ये इंटायर पार्ट जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पार्ट है, ये इंटायर पार्ट आपका डिलीटेड, दिस इंटायर पार्ट इज डिलीटेड, ये सारा पार्ट डिलीटेड है, ये सारे पार्ट डिलीटेड, ठीक है। और कोई बात, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पे दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन ये पार्ट डिलीटेड नहीं। अगर यही क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर मेथड आ सकता है कि बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो आप इसको हटा दीजिए, दैट मींस कि क्वेश्चन करने हैं हमें, बट हमें मेथड डिफरेंट यूज करना। बच्चों को हम नहीं बताएंगे कि भाई आ रहा है क्वेश्चन में लिखा है, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x square minus 6x minus 2 equals to 0 by method of completing the square। अब ऐसा थोड़ी है कि आप इस क्वेश्चन को हटा सकते हैं, आप यहां, you cannot erase this question, you can erase this method। अब ये क्वेश्चन सेम हो पेपर में और लिखा रहे यहां पर कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करना, तो वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हमें सारे करने, method is one, method is deleted, and that method is completing the square method। so questions हमें सारे करने, तो I recommend you, अपने बच्चों को आप बोलिए कि इस क्वेश्चन को करना है, you have to do this question, but method should be different। आप इस क्वेश्चन को completing the square method से करो, या you can use factorization method also। नेक्स्ट, जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, केवल इस पार्ट को हम हटाएंगे, और जैसे इसके रूट्स नहीं निकल रहे हैं, दैट मींस कि आप बच्चों को रिकमेंड तो करते हैं कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ डी इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डी लेसर देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। तो हमें ये बता, अब बच्चा यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यहां पे समझ पाता है, यार ये तो रूट्स इसके नहीं निकलेंगे,
लेकिन अब हमें बच्चों को रिकमेंड करना है कि सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट डी इन सच केस। आप डी फाइंड कर लो, वट एवर द मेथड यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग factorization method or you are using quadratic formula method, first of all you have to find out the value of d. After getting the value of d, we will be able to find whether the roots will be possible or not. तो पहले हम पता कर लेंगे इस चीज को। तो हमें क्वेश्चंस को हटाना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, मेथड को हटा देना बस, दैट्स इट। तो इस केस में सारे के सारे क्वेश्चंस करें। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस हमें करें। मोटर बोर्ड जो है, एज पर माय ओपिनियन कंसर्न, इट इज अ सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक है तो मेरे ख्याल से ये हट जाए, क्योंकि हम इसे रिड्यूस करके, एक तो बिल्कुल इस फॉर्मेट से रिड्यूस करके इसे क्वाड्रेटिक में हम बना, तो दिस हैज बीन डिलीटेड। बाकी इंटायर हमें सारे पार्ट को करना है। 2 वाटर टैप्स क्वेश्चंस, a train travels एक क्वेश्चन, express train क्वेश्चन, that means कि 8 has been deleted, 9 is deleted, question number 10 is deleted. Rest we have to do entire questions. Yes, quadratic equation में digits and sum वाले क्वेश्चन yes आ सकते हो क्वेश्चंस। Those questions are not based on equation reducible to quadratic, वो आ सकते हैं क्वेश्चंस आपके पेपर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 3 क्वेश्चन यहां से क्वाड्रेटिक से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन व्हाई वी आर टेकिंग रिस्क कि हम इन 3 क्वेश्चंस को लेकर के टर्म 1 में एरिया थ्योरम वाज नॉट इन आवर करिकुलम, बट सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 में एरिया थ्योरम से क्वेश्चंस तो टर्म सेट 2 में पूछे ना। सो बेटर है कि वी हैव टू टेक प्रिकॉशन हम ले, और बच्चों के 3-4 क्वेश्चन से बचने के लिए बेटर है कि उन बच्चों को, ठीक है, वी ऑल शुड टीच देम, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनको हम करवा दें, तो बच्चे कंफर्ट जोन में हो जाए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एनी डाउट्स इन ऑल दोस पार्ट्स? राइट, नाउ कमिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2019-20 syllabus is already mentioned here, and 2021-22 applications based on, please I request you, don't write anything on the screen, please. You all are teachers, not students, so please I request you, don't write anything on the screen, please. Applications based on sum to n terms of AP are excluded. Still there is a lot of confusion कि application based questions कौन से। application based questions are basically questions based on word problems, उन्हीं क्वेश्चंस को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो ए nth टर्म यानी कि an के लिए नहीं हटा है, तो an में जितने भी क्वेश्चंस हैं वी हैव टू डू ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है सम टू n टर्म्स एस ऑफ n के लिए हटे, और एस ऑफ n मींस थोड़े से क्वेश्चंस आप सबको मिले। बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, because this chapter, I mean arithmetic progression chapter, is a very hot chapter as far as case study based questions concerned. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और यू कांट बिलीव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन इन योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारी के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट बन सकते हैं। आई थिंक आप सब मेरे साथ एग्री भी कर रहे होंगे मेरे पास। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो एस ऑफ एन पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, ऑल आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सम ऑफ एन टर्म्स में भी जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आई रिकमेंड यू ऑल कि उन क्वेश्चंस को बच्चों को करा दें। हो सकता है मे बी कि ऑल वन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उन क्वेश्चंस को करवाएं बच्चों को। हमें ये नहीं छोड़ देना है कि हट गया भाई, वर्ड प्रॉब्लम हट गया। बहुत सारे टीचर स्टिल दे आर सेइंग
यूट्यूब चैनल पे, इतने सारे सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एपी हैज बीन डिलीटेड। अरे भाई, सिर्फ क्लियर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। तो डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन nth टर्म दैट इज an इज स्टिल एप्लीकेबल। वो आ सकता आपके पेपर, आ सकता आपके पेपर, यानी कि सम के हट है, लेकिन सम को भी आप नहीं छोड़िए, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो स्टिल यू विल रियलाइज, यार ये तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का बड़ा अच्छा एग्जांपल, आप खुद रियलाइज करेंगे। तो आप इसको छोड़िए नहीं, बच्चों को करवाइए। Now, subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब आ जाते हैं इसके पीडीएफ को देखते हैं, बुक में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब कुछ करना, नथिंग। मैं देखिए, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बुक आपके सामने लेकर के, एवरीथिंग वी हैव टू डू, डोंट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल, एवरीथिंग वी हैव टू डू। आप बहुत बार के लोग कहते हैं कि यार इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, या सम ऑफ 1000, दिस, जिसका आंसर भी हमने बच्चों को बहुत पहले से रटवाया है कि 2400 इसका आंसर आता है। ठीक है, ये बिल्कुल हम लोगों ने कराया हुआ है। तो एक क्वेश्चन अगर हम एन पे सॉल्व करते हैं तो नॉट डिलीटेड, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सम ऑफ एन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? इस क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ एस एन ऑल्सो। पहले साल ₹80 का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल ₹80 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तीसरे साल ₹80 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 80 करते करते 30 साल में टोटल सम कितना मिलेगा, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। But whenever we will use an, that is nth term concept, so 80 interest at the end of the first year, that is 80 interest at the end of the second year, that is 80, इसके बाद आ रहा 160, see, then 240, so on. Then A30 will be what? A plus 20, 90. After putting the value of A and D, you will get 2400. So जब आप इसमें एन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो दिस इज नॉट डिलीटेड, दिस इज नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो एनएस टर्म में हमें वी डोंट हैव, लेकिन जब हम एसएन का हमें यूज करना होगा तब नहीं करेंगे। तो एसएन में सेम क्वेश्चंस विल बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज फार एज सम ऑफ एन टर्म्स कंसर्न, राइट? सो इन अ फ्लावर बेड ये सारे के सारे करिकुलम, तो बच्चों को हमें कभी भी नहीं बताना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर डिलीटेड, नो, नॉट एट ऑल। एस ऑफ एन, सम ऑफ एन टर्म्स में सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड। सॉरी, नॉट सिचुएशनल, वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर डिलीटेड एज फार एज सम ऑफ एन टर्म्स कंसर्न। रेस्ट ऑल आर इन करिकुलम, ऑल आर इन सिलेबस, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना, डोंट हैव टू डिलीट एनीथिंग। आधे हम लोग यहां पे देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 16, we correct the production in the first year, that means the question is talking about A1, and production in the 10th year,
दैट मीन्स की क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट A10. तो A10 एंड A1 ये तो भाई एन का पार्ट है, लेकिन द टोटल प्रोडक्शन इन 7 years, तो बोर्ड में पेपर ही पूछ देगा, हो सकता है ये पार्ट नहीं पूछे. So we had to clarify these all things. My target is not, this is not a webinar. This is not a webinar. Usually I do not take any webinar and all. Okay? My book is from Goyal brother Prakashan. That is a complete course in mathematics I have written. And you all people have appreciated a lot for that book. Or emotionally I'm so much attached with that book. तो मैं कोई वेबिनार नहीं आता हूँ, जस्ट आई एम सीइंग माय वॉच एंड ऑल कि 45 मिनट्स एंड टारगेट इज कंप्लीटेड एंड ऑल, ठीक है हो गया, चलो ठीक है काम हो गया, ऐसा नहीं है. हम जो आज पढ़ रहे हैं तो मेरा मकसद है कि आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊं जो स्टिल स्टूडेंट्स आर हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट पार्ट, तो आप भी उनको क्लियर कर लें कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, नॉट लाइक दैट. तो दैट मींस कि दिस पार्ट इज नॉट राइट. सो वी हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अब देख लीजिए यहां पर हम आते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब क्वेश्चन डिलीटेड है एज पर सीबीएसई बोर्ड, दिस क्वेश्चंस आर डिलीटेड. बट स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, स्कूल स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट बन सकते, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट बन सकते. तो व्हाई वी आर गोइंग टू लीव ऑल दोज क्वेश्चंस? बच्चों को करवा देंगे, हार्डली इट विल टेक 1 hour. तो जहां भी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है आई रिकमेंड यू ऑल कि आप बच्चों को उस क्वेश्चंस को जरूर करें, ठीक है. बट सीबीएसई बोर्ड कहती है कि दीज आर टिपिकल, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, दिस टिपिकल एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, these all are the typical examples of case study question. और कभी भी अगर ऐसा दिमाग में होता है कि एनसीईआरटी ऑप्शनल, आप पूछेंगे भी, आई थिंक बहुत लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एनसीईआरटी ऑप्शनल क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड पेपर्स और नॉट. निखिल जी, निखिल जी, ठीक है, आई टेक, यस दिस क्वेश्चन इज, यस यू कैन टेक दिस क्वेश्चन. For equal roots, you have to find out the value of m or any other variables or known term that is like k, m and n. These questions are a very important question. ये तो करना ही है. मैंने आपको बोल दिया, clearly I told you कि only these questions will be done, and from s of n terms. All questions you have to do. All questions you have to do. अभी आप इसमें बने रहिए, लास्ट में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं. So all questions will come. So don't have any confusion. तो एनसीईआरटी ऑप्शनल क्वेश्चन, एनसीईआरटी ऑप्शनल में बहुत बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे स्टार लगा हुआ, दिस स्टार हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, और नीचे लिखा हुआ कि दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज टोटली फेक एंड फॉल्स. दिस इज द व्यूज गिवन बाय एनसीईआरटी. And NCERT means NCERT and CBSE board, these two are not a synonymous of each other. NCERT बुक की किताब तो हमारे यूपी बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है, हमारे बिहार बोर्ड में भी है, झारखंड बोर्ड में भी है, हरियाणा बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट बोर्ड. मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है. तो NCERT book and CBSE board is different board. This is the view of NCERT board. NCERT, आप मत सोचिए कि सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को नहीं देगी. ऐसे क्वेश्चन को देगी तो आई रिकमेंड यू ऑल टू डू दिस टू क्वेश्चंस. और इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा भी. आप में से जितने टीचर एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनको क्वेश्चन पेपर का एकदम बिल्कुल टोटल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स. एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया भी है. तो बट फ्रॉम ऑप्शनल, तो स्टिल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर हमारे स्कूल में टीचर ने सर ऑप्शनल नहीं करा. तो व्हाई? क्योंकि ये सर सीबीएसई बोर्ड में आएगा. दिस इज रॉन्ग. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करवाएं, ठीक है. तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी हैव सर्कल्स.
सर्कल्स में नथिंग हैज बीन डिलीटेड, सर्कल्स में कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ, सर्कल्स में कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ, दैट मीन्स की इंटायर सर्कल इज एज जैसे पहले था 2019-20 में, स्टिल 2021-22 में सेम पार्ट, सो नो डिलीशन। सर्कल पार्ट में स्टिल आई एम टेलिंग यू कि सर्कल्स में एज फार एज एनसीईआरटी बुक कंसर्न, तो आई कंसीडर दैट एनसीईआरटी बुक एज just like a grantha for me. It is like a Ramayana, it is like a Mahabharata, it is like a Gita, Guru Granth Sahib, Quran Sharif, anything you can. Our NCERT book is just like a Bible for all of us. तो NCERT book आप जब CBSE बोर्ड का सैंपल पेपर का अगर आप if you have studied that sample paper released by CBSE board, तो देखा होगा कि सर्कल चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन in CBSE sample paper. And due to COVID and all, बहुत बच्चे सफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है CBSE बोर्ड का जो पेपर आएगा NCERT बुक को बहुत प्रायोरिटी में रख करके, ध्यान में रख करके CBSE बोर्ड का पेपर बनाया जाएगा। तो बच्चों को सबसे पहले NCERT पे एकदम कमांड तो आप करवा दें, that will be a good sign. So no deletion at all. Construction, yes, parts are deleted. Construction में डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये पहले था हमारे सिलेबस में 3 पार्ट था, 2 पार्ट, we have only 2 पार्ट. Division of a line segment in a given ratio. There is only one question in our NCERT. जो 5:8 का क्वेश्चन, 7.66 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, जब only one question, तो उस टाइप पे 2-4 क्वेश्चन और करवा दो, nothing more than that, and then we have candidates. तो आते let's see कि NCERT बुक में क्या, and this is NCERT book construction. Nothing has been deleted. बस अब यहां से आगे सारे, this entire part is deleted. This part is deleted. This entire part is deleted. ये पूरा complete part deleted. बस केवल one question है पेपर, rest all are deleted. Rest all are deleted. Now coming to second part, all questions are there in your CBSE curriculum. 6 तक आता है, 7th part कभी भी नहीं आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा देंगे। तो 6 + 1, that means कि total questions we have to do is 7 questions. But concept clear होना चाहिए। और खास करके जो 2 questions यहाँ पर है, that is question number 4th and then we have question number 6th. These 2 questions are very very important. These 2 questions are very very important. और यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा बच्चों को और कॉन्सेप्ट आप बताएंगे तो ज्यादा बच्चे इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं इसमें, जैसे इस क्वेश्चन को एज फार एज क्वेश्चन नंबर 4th कंसर्न कह रहे कि 60 डिग्री का यहाँ पर कह रहे कि एंगल है इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सो दिस विल बी, अब यहाँ पे आप उसको इस कॉन्सेप्ट को बताइए कि जब यहां पे आप 60 डिग्री लोगे, वही आपके पास ये एंगल 60 डिग्री आएगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, डायमीटर ड्रॉ करके यहां पे वी कैन टेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर एंड अगेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, एंड जब ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन। तो व्हाट एवर बी द एंगल यू विल टेक हियर, आपने 60 यहां लिया तो हियर 60 डिग्री होगा। आप अगर यहाँ 120 लेंगे तो 120 होगा, 50 लेंगे तो 50 हो जाएगा, 40 लेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसे केस में, क्योंकि हो सकता है कि सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे 60 के जगह पे पेपर में 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह मैं आप सबके लिए भेजूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आप लोग को और भी हेल्प करे, खास करके एक्सपीरियंस टीचर को तो नॉलेज होगा ही, कुछ जो यंग एडुकेटर्स होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि टोटल 6 क्वेश्चंस आपको यहां करना है और 1 क्वेश्चंस आपको लाइन सेगमेंट में करना है बस, ठीक है। यहां पर यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1, राइट। So this is all about the construction chapter. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. Now we have some applications of trigonometry. Nothing has been deleted from this segment. यानी कि इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारी की सारी चीजें हमें। और इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में one question is based on time format, जो 6 seconds वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से conceptual questions होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा और एग्जांपल्स दे करके ऐसे क्वेश्चंस को समझाएंगे, तो that will be beneficial for all of them. Now we have surface areas and volume. Surface areas and volume में one entire part has been deleted, one segment has been deleted, so no confusion at all. Frustum has been deleted, so on the basis of frustum एक एक्सरसाइज पूरे के पूरे डिलीट हो। लेकिन कंफ्यूजन, देयर आर स्टिल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन 2 चैप्टर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन एपी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज सेगमेंट हैज बीन डिलीटेड। यहां पे वन सेगमेंट ही डिलीट हो गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेगमेंट दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैज बीन आल्सो डिलीटेड। यहां पर पूरा इंटायर एक्सरसाइज डिलीट हो गया। अब यहां पर हम लोग आएंगे एनसीईआरटी बुक ले लेते हैं यहां पर। सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक। सो एवरीथिंग वी हैव टू डू, कुछ भी नहीं छोड़ना। बस अब इसके बाद के दीज ऑल पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट अब जो है, ये सारे के सारे पार्ट डिलीट है, इंटायर पार्ट अब ये सब डिलीट। अब बच्चों को हमें यहां पर इंटर करने ही नहीं देना, बिल्कुल इस सेगमेंट में टोटली इंटर नहीं करना, क्योंकि इंटायर सेगमेंट डिलीटेड, सो नो कंफ्यूजन एट ऑल इन दिस सेगमेंट, नो कंफ्यूजन एट, सो दिस इंटायर सेगमेंट हैज बीन। अब एज फार एज एनसीईआरटी ऑप्शनल क्वेश्चन कंसर्न, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस हमें बच्चों को कराने हैं, छोड़ने नहीं है। जो फ्रस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है, सारे क्वेश्चंस हम लोग को कराने हैं। डेरिवेशंस कभी भी पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, वो चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो या सरफेस एरिया वॉल्यूम का हो, व्हाट एवर बी द चैप्टर, डेरिवेशन कभी पेपर में नहीं आते। या सिर्फ 16, 17, 18 ईयर्स पहले के पैटर्न थे जब डेरिवेशन भी पूछे जाते थे, अब कोई डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं आते। सो नो कंफ्यूजन। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी ऑप्शनल आई रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी ऑप्शनल के क्वेश्चंस को जरूर करवाएं बच्चों को, बिल्कुल ठीक है। So this is all about a surface area volume part. Next we have statistics. Cumulative frequency curve has been, that means entire segment has been deleted. So exercise based on that cumulative frequency graph that has been deleted. So जो last exercise हमारा वो पूरे तरीके से delete हो गया है. So we have only 3 segment, mean, median and mode. अब median क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो ग्राफ वगैरह थे, ऑल पार्ट्स हैव बीन डिलीटेड। तो दैट मींस कि वेरी सिंपल है, मीन मीडियन मोड अगर मैं बोलूं तो एक ही क्वेश्चंस में आप बच्चों को कराइए मीन मीडियन मोड ऑल पार्ट इन वन क्वेश्चन, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो एक क्वेश्चन में इंटायर दिस 3 पार्ट्स विल बी कवर्ड, एक ही पार्ट में सारे कवर्ड है, मीन कवर्ड, मीडियन कवर्ड एंड मोड कवर्ड। Other than mean median mode, अब मीन में as far as mean concerned, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा दें, मीडियन पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा दें, entire statistics will be covered. Entire statistics will be covered. So how many questions you have to
आपको कितने क्वेश्चंस करने? ओनली 3 क्वेश्चंस इन 1 क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑल। और सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं 4 मार्कर, कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन, मीडियन, मोड ऑफ द फॉलोइंग अगर आता है तो आप एक ही अलग अलग डाटा मत यूज कीजिए, अलग अलग टेबल नहीं, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन वन टेबल यू हैव टू फॉर्म द इंटायर data of mean as well as mode as well as median also। एक ही टेबल में आपको सारे के सारे। यस, स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना, दैट हैज बीन, वो हट गया। यानी कि assumed mean method is there in syllabus and जो डायरेक्ट मेथड है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा, ठीक है, एंड a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, यही दो मेथड, स्टेप डेविएशन डिलीटेड है। अब जब बड़े क्लास इंटरवल्स हो, यस इंपिरिकल फॉर्मूला, यस इंपिरिकल फॉर्मूला हो सकते हैं, आ सकते हैं, रिलेशन तो है ना, मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन से तो आ सकते हैं, पेपर का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, ये करिकुलम का पार्ट है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, कभी भी मीन, मीडियन, मोड आता है, मान लीजिए आपने मीन निकाल लिया, आपने मोड भी निकाल लिया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मीन, मीडियन निकालने के बाद मोड को क्या करते हैं, वो इंपिरिकल फॉर्मूला रिलेशन से मोड को निकालते हैं। आई नेवर रिकमेंड दैट, मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं उनको। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो क्या करें, एक टेबल बनाए, उसमें मेन, मीडियन, मोड एक ही टेबल से सारे निकाले, अगर तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलेशन से अगर मेंशन किया तो रिलेशन, यू कैन राइट द रिलेशन आफ्टर सॉल्विंग योर क्वेश्चन आल्सो। और जब बड़े क्लास इंटरवल्स हो, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर बिगर, तो उस केस में नेवर ट्राई टू यूज डायरेक्ट मेथड इन दैट केस। ये पेपर में कभी कभी मेंशन भी आता है कि which method you will prefer to use in this question, ऐसे भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए, जब बड़े क्लास इंटरवल हो तो वहां पे यू हैव टू यूज assumed mean मेथड, छोटे क्लास इंटरवल हो तो आप डायरेक्ट मेथड देखें। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि इन एज फार एज दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स कंसर्न, वन क्वेश्चन इन वन टेबल, आई रिकमेंड यू to find out mean, median as well as mode in one table, और ऐसे 3-4 क्वेश्चंस बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दें, that is more than sufficient। और missing frequencies where f1 and f2 both are missing in case of mean, और mean के NCERT बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पर missing frequencies 2 दे रखे हैं। we won't get any question in our NCERT। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस बच्चों को करने होंगे। बट मीडियन में अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना हो, एक्स एंड वाई फाइंड करना हो, तो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन आवर एनसीईआरटी बुक। एक सॉल्व्ड एग्जांपल में है और एक अनसॉल्व में। देयर आर 2 क्वेश्चंस इन आवर एनसीईआरटी बुक एंड दोस 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस अक्षर जी, आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स ग्रुप एंड ऑल, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा आपको सारी चीजों के बारे में, राइट। सो these are the deleted part, right? तो लास्ट में इस पार्ट को भी ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक। तो नथिंग हैज बीन डिलीटेड इन स्टैटिस्टिक्स। सो जो भी है बच्चों के लिए पहले से सब कुछ है, केवल 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, बच्चों को हेल्प करने इन 4 क्वेश्चंस ऑल। ऑल पार्ट्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, ऑल पार्ट्स आर देयर। बस स्टेप डेविएशन मेथड इज नॉट देयर, स्टेप डेविएशन मेथड इज नॉट देयर, बट सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें करना है। मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। हाँ, और इसमें एक लेस देन एंड मोर देन का कॉन्सेप्ट वाले जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं एज फार एज मीडियन कंसर्न, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, मोर देन कॉन्सेप्ट, दीज 2 कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेस देन, मोर देन, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन केस ऑफ मेन, missing frequencies in case of median, not in case of mode, in case of mean and median only, and less than and more than best questions। तो 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम है, और 4 से 5 क्वेश्चंस अगर बच्चे कर लेते हैं तो उस केस में बच्चों के आराम से 100% 7 to 8 मार्क्स उनके पेपर में दे विल स्कोर 7 to 8 मार्क्स इन देयर बोर्ड पेपर्स, राइट।
So and less than more than questions are there in your NCERT book, so nothing to worry. Only केवल NCERT books हम करवा देंगे तो that will be sufficient, right? So a questions I'm talking about this question, example number 8, missing frequency. This is X and Y. These questions are very very important questions, or similar questions are there in unsolved exercise, and this is your empirical relation is given in your NCERT book. तो ये भी बच्चों को हमें लर्न करा देना, कभी कभी empirical relation आ सकता है। एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस में अगर ऐसा आ जाए कि मीन इज गिवन, मीडियन इज गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन, तो उस केस में बच्चे क्या करेंगे? इट इज मैंडेटरी टू हेल्प देम टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन, जो ये आपका एम्पिरिकल रिलेशन, राइट? सो अब ये पार्ट पूरे के पूरे डिलीट है, दीज ऑल पार्ट्स आर डिलीटेड। अब ये सारे डिलीटेड पार्ट हो एनसीईआरटी में, दीज ऑल पार्ट्स आर डिलीटेड, ये सारे के सारे पार्ट, ये सारे के सारे ऑल पार्ट्स आर डिलीटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। So you can join my global educators group. Everywhere my number is written there. And again, I'm telling you 9717, and this is 27, 27 and 37. This is the contact number of my global group. I think बहुत सारे टीचर्स हमारे global group के होंगे भी, और वहां पे everyone is helping each other. सब लोग हेल्प करते हैं दूसरे को, अच्छे कंटेंट भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग इन दैट ग्रुप। और जो अभी इस ग्रुप में नहीं है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी 9717272737, और दे कैन कॉन्टैक्ट जितिन जी ऑल्सो। He has also right to add you in that particular group. Otherwise, you can contact me here. This is my WhatsApp number, that is 9717272737, and you can join my global group. अभी हालांकि मेरे ख्याल से 250 अराउंड मेंबर्स आर देयर, तो 258 से ज्यादा मेंबर्स इसमें हो नहीं सकते, तो वी कैन फॉर्म अनदर ग्रुप आल्सो, जहां पे वी कैन शेयर आवर कंटेंट एंड ऑल एंड एवरीथिंग। Group is very helpful, sir, for everyone. Thanks, sir, for this opportunity. Thank you so much, Prakashan. Thank you so much, Paramji. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजी फॉर 2022 बोर्ड पेपर। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आई ऑलवेज कीप इन माय हार्ट, and this is the NCERT. So we never, yes, we can form Telegram group also. Yes. ठीक है, I'll try to form Telegram group. Don't worry. ठीक है, rest आप लोग you can contact, you can WhatsApp me hello and hi. You can WhatsApp me. My WhatsApp number is given. That is 97. Everywhere it is given. 9717272737. It is very easy to recall also. 9717272737. You can send your details there. You can send your details there and I'll add you in that. Otherwise, you can contact Mr. Jitin ji also. ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो हम लोग ऐड कर लेंगे, और दिस इज अ वेरी हेल्पफुल ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग के लिए कंटेंट वी शेयर टू ईच अदर। थैंक यू सो मच मेहंदी रत्ता जी, थैंक यू सो मच। अब मेहंदी रत्ता जी इज वन ऑफ द pioneer member of that group, and usually thank you so much for sharing lot of very good content in that group. Yes, I'll try to form a Telegram group also. Thank you so much for your support. In fact, thank you so much for your unconditional support. I'll send you the link also. Thank you so much. Thank you so much. So, अब आते हैं. Now I'm coming to textbook strategy for 2022 board papers. अब still हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है. We have, I think, 1.5 months
एंड ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल सीबीएसई बोर्ड का पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए हमारा राइट टाइम होगा। थैंक यू सो मच योर काइंड टेक्स्ट एंड मैसेजेस, थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं कोई वेबिनार, आई नेवर कंडक्ट एनी वेबिनार। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि बीके सर आप वेबिनार कंडक्ट करो, लेकिन मैंने कभी नहीं लाइफ में किया है। मैंने पिछले साल गोयल ब्रदर प्रकाशन के साथ किया क्योंकि मेरी बुक्स वहां पे है, और स्टिल आई एम डूइंग क्योंकि मैं उनके साथ लिखता हूं। और गोयल ब्रदर प्रकाशन इज द ओनली वन पब्लिकेशन हाउस इन इंडिया जिसके ऊपर मैं बहुत ब्लाइंडली फेथ करता हूं, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं कि दे प्रोड्यूस रियली अ क्वालिटी बुक्स इन द मार्केट। और मेरी बुक अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स, तो मैंने उसमें बहुत हार्ड वर्क अपने उसमें डाले हैं, और आई थिंक आप लोग बहुत लाइक करते हैं उस बुक को। इंडिया में बहुत सारे मोर देन 500 स्कूल्स में दैट बुक हैज बीन रिकमेंडेड आल्सो। तो थैंक यू सो मच, आप सबके कंट्रीब्यूशन के कारण वो बुक भी इतने सारे स्कूलों में रिकमेंडेड है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट। तो मैं कोई वेबिनार नहीं लेता, मुझे टाइम चाहिए। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता हूं कि हम लोग एक इंफॉर्मेटिव चीज एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। वेबिनार के टाइम टेबल फिक्स होता है, वो सरकारी नौकरी की तरह होता है। दैट इज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट सर्विस कि अपना टाइम घड़ी देखा, 45 मिनट्स में बाहर हो गए, ठीक, ऐसा नहीं, और सर्टिफिकेट मिल गए। तो ये सब कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हम लोग मैटर करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे के साथ कुछ अच्छी बातों को शेयर करें। तो मेरा माई मोटो इज दैट बेसिकली, ठीक है। और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच for your nice text and messages. So NCERT textbook, that is just like a Bible, Gita, Ramayana, Mahabharat, Quran Sharif, Guru Granth Sahib, everything for me. ये सारे धर्म के लिए जो है ना, this book is equal for all. तो मैं इस बुक को तो बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अदर देन दिस बुक, ठीक है, आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू स्टडी मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। बहुत सारे स्कूल में मैं, ठीक है, आई वाज टॉकिंग अबाउट 8 years बैक की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज इन झारखंड एंड टेकिंग माय क्लासेस इन डीपीएस स्कूल, तो 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। डीपीएस स्कूल में व्हेन आई आस्क्ड, बच्चों से मैंने पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो किसी बच्चों को पता नहीं था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है। लेकिन अब अगर आज के टाइम में किसी बच्चे से पूछो क्या आर यू अवेयर ऑफ दिस बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, तो ईच एंड एवरीवन नोज। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। और सीबीएसई बोर्ड जब पेपर अपना सेट करती है, तो अपने टारगेट में एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखती है। आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल, डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। तो 2022 विल बी अगेन वेरी क्रूशियल, और इस बुक को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आउट ऑफ दिस ऑल चैप्टर्स, अगेन आई रिकमेंड यू कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पॉजिटिव पॉइंट्स से नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हम टेलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कभी भी हमें ज्योमेट्री नहीं करना। एनसीईआरटी, अगेन आई एम टेलिंग यू कि एज फार एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कंसर्न, we don't have to do even a single problem from that as far as geometry concerned. बिल्कुल हमें नहीं। Please, still I request you, don't write anything on screen, please. आप रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई आप बिल्कुल प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखे अभी। Now I have disabled that property. ठीक है, अक्षत ठाकुर जी, ठीक है, I'm sending you the link for that. After the session, I have provided you my contact number, that is 9717272737. So after the session, you can contact me, even you can call me, you can WhatsApp me, I'll add you in that group. So don't worry. So these are the two important books. One is NCERT and another one is NCERT exemplar problem. अब मैंने कहा कि NCERT exemplar problem से हमें कभी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से हमें कभी भी ज्योमेट्री के पार्ट नहीं, वी डोंट हैव टू कवर ज्योमेट्री सेक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, लॉट ऑफ डाइवर्टेड क्वेश्चंस आर देयर। और इस समय में व्हेन हमारे पास 1.5 months हैव बीन लेफ्ट, तो उस केस में 1.5-2 महीने के टाइम में
we cannot cover all such questions, और CBSE बोर्ड में कभी वो पूछे भी नहीं जाते. But yes, quadratic equation concerned, NCERT book is very, very important. Arithmetic progression, very, very important. As far as applications of trigonometry, height and distances, again, it is a very important as far as NCERT exemplar book concerned. Circles में भी बिल्कुल नहीं करने हैं, कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल नहीं करने हैं, स्टैटिस्टिक्स में यस करने हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम में 100% हमें करना. रिमेनिंग सारे चैप्टर्स में NCERT एग्जाम्पलर कवर करने हैं, ठीक है, लेकिन हमें 2 चैप्टर में नहीं करने, यानी कि 5 चैप्टर्स में वी हैव टू गो थ्रू दिस बुक. आई थिंक दैट विल बी बहुत बेनिफिशियल. अगर आपके पास अ कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स है, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी, तो आई रिकमेंड यू कि आप इस बुक के केवल और केवल सॉल्व्ड एग्जांपल, ओनली सॉल्व्ड एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्व्ड एग्जांपल, केवल सॉल्व्ड एग्जांपल को बच्चों को अगर आप करा देंगे तो अगेन आपको फिर NCERT करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव, सिंस these books are so attached with me, so I have covered the entire good and high graded questions in that book also. सारे के सारे inculcate करा हुआ, I have all those questions from NCERT and NCERT exemplar in this. और इस बुक में जहां भी wherever you find the difficult question in that book, तो there is a QR code, quick response code is given there, तो आप उसे अगर स्कैन करेंगे तो you'll find my video solution at that place also. So this is the beauty of this book. अगर ये बुक है तो आप ठीक है, अदरवाइज इस बुक्स को आप टीचर, एज ए टीचर, इफ यू वांट सैंपल पेपर्स एंड ऑल, तो जितिन जी इज हियर, जितिन जी का भी नंबर मैं बाद में बताऊंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट, ही इज द राइट पर्सन टू गेट दैट. Expression based questions of applications. Thank you sir, no need of any other book, your book is itself sufficient. Thank you so much Swapna ma'am, thank you so much. Okay, Swapna ma'am is also here. Thank you so much ma'am, thank you so much. No words about your work, simply superb. So मैंने कहा कि अगर हम NCERT पढ़ लें, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर लें, और कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स कर लें, तो ग्रांटेड 100% इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी. और मेरी बुक के पूरे पार्ट नहीं कर रहे, दे आर अराउंड 11 और 1200 पेजेस इन माय बुक. और मैंने क्या किए हैं, उस बुक का ब्यूटी क्या है कि जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे उसमें सारे के सारे हाई ग्रेडेड एंड क्वालिटी क्वेश्चंस हमने सॉल्व्ड एग्जांपल में डाले. यार कि एक बच्चे के पास अगर एक टीचर की कमी है, क्लासेस नहीं हो रही है, तो बच्चा अगर वो सॉल्व्ड एग्जांपल भी कर ले तो दे कैन स्कोर 90% एंड अबव मार्क्स इन देयर पेपर. वी ऑल आर गुड एडुकेटर्स, हम सारे सही हैं, लेकिन मैं तो गांव में गया हूं और मैंने देखी है टीचिंग क्वालिटी. तो रियल आई एम सो अफ्रेड ऑफ दैट कि बच्चों के अंदर पढ़ने का पैशन भी है, उनको शौक भी है, बट उनके पास अच्छे टीचर की कमी. तो मेरे बुक बनाने का पीछे मकसद यही था कि इस बुक में इतने हाई ग्रेडेड क्वेश्चंस हम सॉल्व्ड एग्जांपल में डाल कि बच्चों को अगर सॉल्व्ड एग्जांपल खुद भी कर ले तो दे विल स्कोर 95% एंड अबव मार्क्स इन देयर पेपर. Thank you so Prerna Gupta ma'am, it was nice listening to you sir. Thanks a lot for this informative session. Thank you so. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. अब आते हैं, अब नाउ हम लोग जो मेन बुक के ऊपर आते हैं, जो स्कोर प्लस बुक के आते हैं. एंड ये जो हमारा वेबिनार जो हो रहा है दैट इज बाय स्कोर प्लस, एंड स्कोर प्लस बुक के साथ जो मैंने काम किया है, दिस इज अ सैंपल पेपर. थोड़ा सा मैं स्टोरी बताऊंगा एंड मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि आई एम नॉट प्रोमोटिंग माय बुक, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस स्कोर प्लस बुक और अ कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स बुक. यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं, मैं अपने बुक का कभी प्रमोशन नहीं करता. मुझे पता है कि एक अच्छे
अच्छे टीचर के हाथ में जब मेरी बुक जाएगी तो ही विल अप्रिशिएट, एंड माय कॉन्टेक्ट नंबर इज आल्सो देयर, गिवन इन प्रीफेस में दिया हुआ है, तो सर्टेनली दे विल कॉल यू। एंड एवरी डे आई गेट एटलीस्ट 20 to 25 कॉल्स एवरी डे। स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो भी लेक्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स, सबके कॉल आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो मेरी ही बुक अपनी, बट वो बुक है गोयल ब्रदर प्रकाशन का, मैं तो वहां पर उनके साथ ऑथर हूं, मैंने उस बुक को लिखी हुई है। तो अभी हम लोगों ने काम किया स्कोर प्लस बुक के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि सैंपल पेपर, चूजिंग अ करेक्ट सैंपल पेपर इज ऑल्सो अ ग्रेट वर्क। एज एन एजुकेटर, वी ऑल आर एजुकेटर्स, एंड मैंने तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस के साथ वर्क कर, रचना सागर से लेकर के, जेपीएस से लेकर के, वाइली इंडिया से लेकर के, पियर्सन से लेकर के, गोयल ब्रदर प्रकाशन से लेकर के, साहित्य भवन से लेकर के, विद्या पब्लिकेशन के साथ लेकर के। मुझे लगता है इंडिया में ऐसा कोई पब्लिकेशन हाउस नहीं है जिनके साथ फ्रीलांस या प्रॉपर तरीके से उनके साथ मैंने वर्क नहीं करा हुआ। लास्ट 20 ईयर्स की बात बता रहा हूं। अब मैंने बहुत चीज देखे वहां। तो चूजिंग अ करेक्ट सैंपल पेपर इज ऑल्सो अ ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ओसवाल सैंपल पेपर? रेज योर हैंड प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ओसवाल सैंपल पेपर? Everyone. I think everyone. Everyone, yes. Okay, thank you so much. Because their marketing strategy is very good. I'm not going to criticize that simply. What story I want to share with you all. ओसवाल की बात हो सकता है ओसवाल मेरी बात को सुने तो कल मेरे पास PIL भी डाल दो, ये बीके सिंह सर के ऊपर केस ही डाल दो, पब्लिकली मेरी बुक का शिकायत कर। मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ अभी प्रेजेंटली जुड़ा हूं, दैट इज विद्याकुल। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे विद्याकुल, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे बीके सिंह, बी फॉर बॉम्बे, बीके सिंह क्लास 10th मैथ्स, तो यू विल गेट मोर 100-500 वीडियोस, माय वीडियोस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मेरा जो विद्याकुल का जो प्लेटफॉर्म है, जिनका मैं फाउंडेशन टीम को लीड कर रहा हूं अभी प्रेजेंटली, वो ऑस्ट्रेलिया फंडेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। यू पीपल कैन नॉट बिलीव, पिछली बार क्या हुआ कि ओसवाल और विद्याकुल के साथ, इनके साथ एक पैक्ट हुआ, और विद्याकुल ने अब सारे एडुकेटर्स को रिकमेंड किया कि यू हैव टू शो दिस सैंपल पेपर, दैट इज ओसवाल सैंपल पेपर, ड्यूरिंग योर सेशन। तो आई सेड नो, आई कांट डू दिस। तो बेसिकली वहां पे सबसे सीनियर टीचर मैं ही हूं उनके। तो बोले कि सर वाई सर आप क्यों नहीं करेंगे, आपका तो मेरे साथ एग्रीमेंट है सर, आप तो मेरे साथ सारी चीजें एग्रीमेंट आपने मेरे साथ करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, यू कैन ब्रेक दिस एग्रीमेंट, बट आई कांट डू दिस। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बुक दे दो, मैं 2-3 दिन उस बुक को स्टडी करूंगा। उसके बाद पहले आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप में से जितने भी सीरियस एडुकेटर होंगे जिन्होंने ओसवाल का सैंपल पेपर, मैं जस्ट अभी की बात बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म 1 करिकुलम, टर्म 1 की बात बता रहा हूं, ये 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। You people cannot believe, हर सैंपल पेपर में, in every sample paper there were 10 to 15 mistakes in every sample paper. As a good educator, when you get irritated, आपके हाथ में कोई किताब होती है जो क्लास में बच्चों को करवाते हो, और if you get any mistakes in that question, तो आप सबसे पहले आप इरिटेट हो जाते हो यार कि इस बुक को हाथ में हटा। अगर मैं अपनी कैमरा घुमा करके अगर मैं आपको लाइब्रेरी अपनी दिखाऊंगा ना, तो यू कैन नॉट बिलीव, मेरे पास 10,000 से भी ज्यादा किताबें, मोर देन 10,000 बुक्स इन माय लाइब्रेरी। और आज की किताब नहीं है, आप पूछेंगे 20 इयर्स बैक, 20 साल पहले मैथ्स की बुक आपके पास, तो 20 साल पहले का भी कैरिकुलम मेरे दिमाग में। तो सवाल की बुक जब मैं बच्चों को फर्स्ट डे करवा रहा था, तब मैंने देखा कि 4 to 5 क्वेश्चंस पे देवर मिस्टेक। देखिए बहुत सारे एजुकेटर लिख भी रहे एग्री सर, बहुत सारे एजुकेटर लिख भी रहे एग्री सर। अब उनकी यू कैन बिलीव, उनकी बुक हमारे इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा बिकती, मोर देन 10 मिलियन। तो एज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि डोंट ट्राई टू प्रमोट ऑल दोज बुक्स। हमें अगर कुछ उनसे मिल भी रहे हैं ना, तो डिस्पाइट इन दैट केस वी शुड नॉट प्रमोट बैड बुक्स। और
बहुत बार बहुत सारे एडुकेटर बाय हुक और बाय क्रूक गंदी किताबों को प्रमोट करते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि कभी भी ऐसे बुक्स को प्रमोट हमें नहीं करने चाहिए, कभी भी ऐसे बुक्स। उसके पीछे रीजन क्या है? कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज व्हाट? रीजन इज व्हाट? रीजन इज व्हाट कि ओसवाल बुक्स जो है ना, सैंपल पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स पार्ट ओनली, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। मैंने पूरे सवाल को सारे मार्क करके, आई एम अ वेरी वोकल पर्सन, पूरे मार्क करके हाईलाइट करके उनके डायरेक्टर को मैंने मेल कर दिया। उसके बाद मेरे पीछे वो 10 बार पड़े कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, सर मेरे साथ आप बुक के ऊपर काम करो। दे वर गिविंग मी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो, लेकिन मैंने नहीं काम किया उनके साथ। बेसिकली उनकी जो बुक्स है ना, यू कैन नॉट बिलीव, उनके बुक्स जो हैं वो उनकी एडिटोरियल टीम बनाती है। एक ऑथर बुक लिखता है जो एवरी डे जो बच्चों को फेस कर रहा है, एवरी डे करिकुलम को स्टडी कर रहा है, एवरी डे सीबीएसई बोर्ड के साइट पे जाकर देखता है कि व्हाट इज न्यू इन मार्केट, और हर दिन जो 2-2 हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उसकी जो एक्सपर्टीज हो सकती है, कभी भी एडिटोरियल की वो एक्सपर्टीज नहीं हो सकती दैट वर्क। आई थिंक यू ऑल आर एग्री विद। तो उनकी बुक एडिटोरियल लिखती है, 4 मार्कर क्वेश्चंस में डाले हुए 1 मार्कर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कभी भी ट्रेंड्स के ऊपर नहीं थे वो क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जो भी दिल किया डाल देना, जो भी दिल किया डाल दिया। दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यही तो एनईपी में अब बेटर हो रहा हमारे लिए, हम सबके लिए। हम लोग आज तक क्या करते आ रहे हैं? हम लोग आज तक यही करते आ रहे हैं कि जब हमारे पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन का चांस होता है, एमसीक्यू का चांस होता है, मान लीजिए आपको मैं एनईपी जो है ना, बिल्कुल एकदम 5 सेकंड्स के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनईपी क्यों हमारे लिए बेटर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों बेटर है। हालांकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 10 साल के अंदर एनईपी को इंप्लीमेंट किया जा सकता। पेपर वर्क इज डिफरेंट वर्क। आप बिहार में चले जाए, झारखंड में चले जाए, हरियाणा के रूरल एरिया में चले जाए, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूं, गांव गांव में चले जाएंगे, टीचर्स का जब स्टैंडर्ड देखेंगे ना, आपके पैर नीचे से जमीन खिसक जाएगा। उनको इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनईपी की एनईपी है क्या चीज। भाई आज भी आप पूछेंगे एनईपी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। इज इट फॉर अ गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज विद इन ईयर और 2 ईयर? इट्स इम्पॉसिबल। वी कैन डू इट। वी आर सो कॉशियस, वी आर एडुकेटेड, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अर्बन सिटी में हम पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बट एनईपी क्या कहता है? अगर कह जाता है हिंदी में आपको समझा रहा हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप सबको। भारत की राजधानी कहां है? वी हैव 4 ऑप्शन। तो एनईपी के पहले वाला पार्ट ये कहता था कि भारत की राजधानी दिल्ली, हमने एक करेक्ट ऑप्शन वहां पे डाल दिया, दैट इज दिल्ली। 3 हमने कुछ भी डाल दिया, 3 हमने कुछ भी डाल दिया, शक्ति नगर डाल दिया, आपने अपने एरिया का, अपने गांव का नाम डाल दिया, अपने शहर का नाम डाल दिया, कोई मैटर नहीं करता भाई। 1 करेक्ट ऑप्शन शुड बी देयर, दैट्स इट। ये आज तक का हमारा एजुकेशन करिकुलम। एनईपी कहता है कि भैया आप अगर दिल्ली डाल रहे हो ना, तो दिल्ली के साथ जो करेक्ट ऑप्शन 3 जो आप डालोगे ना, वो भी आपको दिमाग से डालना पड़ेगा। तो हमने जो दिमाग से डाला वो ये डाला, दिल्ली डाला, फिर कोलकाता डाल दिया, फिर मुंबई डाल दिया, फिर चेन्नई डाल दिया मान लीजिए। और पहले जो मन किया, मैंने अपने घर का एड्रेस डाल दिया, कि शक्ति नगर डाल दिया, कमला नगर डाल दिया, मतलब नहीं, एक करेक्ट ऑप्शन हमें डालना है। एनईपी कहते हैं भाई कुछ एक के साथ 3 ऑप्शन आपको उसी सराउंडिंग में डालने हैं आपको। अब कलकत्ता, इट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912 में था। 1912 में हमारे देश की राजधानी कलकत्ता में हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुंबई भी राजधानी है, आर्थिक राजधानी हमारे देश की मुंबई है, तो दैट इज नियरेस्ट टू दिल्ली, ये एनईपी कहते हैं। अब इतना दिमाग लगाने का कहां टाइम है? एजुकेशन के पास टाइम है, समय है हमारे पास, तो वी कैन नॉट डू दिस वर्क। लेकिन मैं करता हूं, मैं इतना वर्क करता हूं। अभी मैं एनईपी के साथ भी एसोसिएटेड हूं, ब्रिटिश काउंसिल के साथ, मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर का भी फ्रेम कर रहा हूं मैं। तो मैं एक साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ में काम करता हूं। तो मेरा मतलब है कि गलत सैंपल पेपर्स को नेवर रिकमेंड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट रिकमेंड रॉन्ग सैंपल पेपर्स, whatever be the opportunity you all are getting, ठीक है, never try to recommend
bad sample papers. मेरे हाथ में आप, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे हाथ में अगर 1000 किताब पेज की बुक अगर आप दे दें अभी, तो हार्डली इट विल टेक 1 to 2 minutes to evaluate that book, strength of that. 1 मिनट में उस पूरे बुक का मैं जो जन्म कुंडली है ना, ठीक है, मैं खोल करके रख दूं. फिर मैंने उस सवाल के सैंपल पेपर्स नहीं करवाए. मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने ही सैंपल पेपर, बनाए हुए सैंपल पेपर्स में दूंगा, ठीक है, वही सैंपल पेपर्स में रिकमेंड करूंगा. तो इन सारे कंडीशंस में गोयल ब्रदर प्रकाशन का जो स्कोर प्लस सैंपल पेपर है, आई होप यू ऑल विल लाइक दिस. मैंने इस सैंपल पेपर को स्टडी भी करा हुआ है, देखा भी हुआ है अच्छे तरीके से, और इसमें क्योंकि मैंने आज के सेमिनार के 2 दिन पहले मैं पूरे क्वेश्चंस पेपर को देखा था मैंने, तो इट इज अ वेरी गुड सैंपल पेपर. तो मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि एक बार इस सैंपल पेपर को आप देखिए. इसमें मेरे गाइडेंस के अंदर में दिस सैंपल पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है. तो आई थिंक यू ऑल विल लाइक दिस सैंपल पेपर, एंड दिस इज अ ओसवाल सैंपल पेपर. थोड़ा सा, सॉरी ओसवाल नहीं, स्कोर प्लस सैंपल पेपर बाय गोयल ब्रदर प्रकाशन. मैं इसका थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस के कलेक्शंस दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज द बेसिक सैंपल पेपर. आपकी आई एम गोइंग टू गिव यू अ नंबर टू ऑल द रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स, और इनके पास सर कोई भी क्वेरी आती है स्कोर प्लस के रिगार्डिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग एनी सजेशंस रिगार्डिंग करेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, एंड माइट बी, हो सकता है मैथमेटिक्स से एक या दो कहीं एरर भी मिले, तो डू इन्फॉर्म मी. Sure, sir, I will do that. Sir, I am also sharing a link by which participants can access the book. Okay, very good. It's a good idea. It's a good idea. Thank you so much. Link, sir. So this is the look of so all questions. Most important part is कि जब हम whenever we start doing the sample paper, so before that important terms, definitions and formulae, ये बहुत अच्छा, इस बुक का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही पार्ट लगा, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, पेपर करने के पहले एक बार वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और ये बहुत ऐसा नहीं कि केवल 4 लाइन में दे दिया हुआ, ठीक है, पूरे डिटेल्स में दिया. तो दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस बुक. तो मैंने बहुत लाइक किया. तो ये बहुत अच्छा, इस पॉइंट को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ एज एन एडुकेटर. और बाकी क्वेश्चंस के जो कलेक्शंस हैं, सारे सॉल्यूशंस भी हैं, सॉल्व्ड भी है, अनसॉल्व्ड भी है. तो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पर इस बुक में लिए हुए. लिंक भी इन्होंने भेज दिया जितिन जी ने. सो आप लोग एक बार इस सैंपल पेपर को देख सकते. Again, I'm telling you कि I'm not doing a marketing for this sample paper. As a good educator, मैं एक बार जरूर कह सकता हूँ कि इस पेपर को आप देखो, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे. तो rather than covering 3 and 4 sample papers, if you are doing 1 sample paper, and that equals to the strength of 4 and 5 sample papers in the market, तो अभी सच है क्या होगा, आप अपने टेबल पर अगर एक किताब रखते हैं, and that is covering the entire content और पूरे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर तो और कुछ नहीं हो सकता. सारे हाई ग्रेडेड क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर आल्सो कवर्ड इन दिस सैंपल पेपर. ठीक है, तो यहाँ पर जितिन जी विल हेल्प यू टू गेट दिस बुक, एंड यू कैन रिकमेंड दिस बुक टू योर स्टूडेंट्स आल्सो. And this similar format में we have basic level papers as well as a standard paper भी हमारे पास. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. चलिए, अब लास्ट में वो लगाते हैं, सेशन के लास्ट में, what BK Singh is going to provide you. You can note down the number of Mr. Jitin Dhingra ji also. His number is 9999 9999
and 64 and 6050. Is it right, Jitin ji? Yes, sir. So for any query regarding sample papers or a complete course in mathematics book, he's a right person and he's a very prompt person also. अगर आप बात करेंगे तो आपके कॉल को पिक भी करेंगे और बहुत जल्दी आपके पास बुक भी अवेलेबल करवाएंगे. ठीक है? Thank you, sir. Thank you. Never says no to any. So thank you so much, Jitin ji. And you are one of the most important factor why I'm taking this session. What I'm going to provide in our group, that is Global Educators Group, and my number is 9717, and this is 272737. So this is a very easy to recall number, and this is my personal number 9717272737. कभी आप कॉल करते हैं, by chance if I'm not picking your call, तो I'm very prompt in that also. तो जब भी फ्री में हो जाऊंगा तो मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा. ठीक है? तो मेरे लिए भी कभी ना नहीं आप सबके लिए, क्योंकि ऑल आर एडुकेटर्स. अगर हम लोग एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तो हु विल हेल्प अस? और हमें से बहुत अच्छा हमारे ग्रुप जो है ग्लोबल एडुकेटर्स का ग्रुप, वी हैव 250 एडुकेटर्स आर देयर. और बहुत अच्छा लगता मुझे कि सारे एडुकेटर्स एक दूसरे को कंटेंट, बुक्स, कंटेंट, सैंपल पेपर्स एंड एवरीथिंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर. वहां पे सबसे कम कोई एक्टिव रहता है तो बीके सिंह सर एक्टिव रहते हैं. बाकी रेस्ट ऑल आर वेरी एक्टिव देयर, ऑल आर वेरी एक्टिव देयर. सो थैंक्स टू यू ऑल. तो आप सबको थैंक्स करूंगा. ठीक है? लेकिन मैं अब एक्टिव हो जाऊंगा आप सबके लिए. And within 1.5 months, that means February, entire February and till 15th of March, 45 days around, 40 and 45 days. What I'm going to provide you, chapter-wise 6 test papers. And that is entirely prepared by me. That is entirely prepared. You people cannot believe कि even कि उस क्वेश्चन को जो टाइप करता हूं ना वो भी मैं करता हूं. Even I type that questions. ठीक है? आप जब क्वेश्चंस की क्वालिटी देखोगे तो पीपल विल रियलाइज कि रियली जिसने भी बनाया है उसने हार्ड वर्क करा. तो सब चैप्टर वाइज और टेस्ट पेपर्स 6 पेपर्स. ठीक है? ये टोटल चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर एक टोटल, जैसे एक क्वाड्रेटिक का एक टेस्ट पेपर होगा और इंटायरली उसी करिकुलम पे होगा, सीबीएसई करिकुलम. दैट मींस कि 14 क्वेश्चंस, section A, B and C, 6 questions in section A, 4 questions in section B, 4 questions in section C, including internal choice also. उसी करिकुलम पर 6 चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स होंगे. देन 4 मॉक टेस्ट पेपर, 4 मॉक टेस्ट पेपर बना करके मैं दूंगा. उसमें बेसिक लेवल का भी होगा एंड स्टैंडर्ड लेवल आल्सो. एवरी सेट के 3, एवरी पेपर के 3 सेट्स होंगे. दैट मींस कि देयर विल बी 12 पेपर्स. There will be 12 papers. और I assure you कि जब आपको पेपर्स मिलेगा तो all people will be very happy. आप अगर कहते हैं तो मैं उसमें कोई वाटर मार्क भी नहीं लगाऊंगा. ठीक है? आप उस पेपर को किसी और ग्रुप में नहीं शेयर करना, आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते. You don't have to share all those papers in any other group, but yes, that is for your students also. अपने बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं. एंड देन प्रैक्टिस असाइनमेंट 10 प्रैक्टिस असाइनमेंट. प्रैक्टिस असाइनमेंट में these all questions are high graded questions, higher order thinking skill questions and based questions collected from all good reference book like A Complete Course in Mathematics, R.S. Agrawal and Addition. These 3 books are called textbook. And one segment is sample paper, and that is score plus. And Grantha is 2. We have only 2 Grantha. And NCERT and NCERT exemplar problem. And then you have to put full stop over there. No comma. इसके बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं किसी भी एडुकेटर. I promise you. इसके बाद अगर कुछ if something more required, तो do text me in my group. I'll provide you that content. बाकी अगर पब्लिशर आपको आकर के अगर सारी बुक्स दे रहे हैं तो nothing is wrong to keep that book, but never study that. ये आप 3 किताब पढ़ करके देखिए, मुझे लगता है कि इससे बाहर एक कंप्लीट पेरीमीटर है, बाउंड्री लाइन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना. बिल्कुल. So those who want sample paper can always mail us at jitin.d@goyal-books.com or also WhatsApp us with your complete school name
so that we know. Sometimes, sir, teachers only message one liner that they want book, but they don't tell where they want. So please mention everything in detail so that we can send you the books. Yes, you are right. You are right. Right? Thank you so much, sir. Thank you for your time. Okay. It And was to indeed a join wonderful Global session. Educator Group, you may contact me 9717-272737. This is my contact number. Thank you so much, everyone. Now, subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.